دہلی میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے گدی نشین پاکستان میں پراسرار لاپتہ۔ آصف علی نظامی بھتیجے ناظم علی کے ساتھ کراچی جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ گئے۔ بھارت کا پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ، وزارت خارجہ نے وزارت داخلہ سے تعاون مانگ لیا۔ آصف نظامی 6 مارچ کو پاکستان پہنچے، کراچی میں ہمشیرہ کے گھر ٹھہرے، 13 مارچ کو لاہور گئے، پاک پتن میں بابا فرید کے مزار پر حاضری دی، 14 مارچ لاہور میں گزارا، وہ آخری بار لاہور ایئرپورٹ پر دیکھے گئے، 15 مارچ کو 4:25 پر ان کا فون بند ہوا، انہیں 20 مارچ کو واپس بھارت پہنچنا تھا۔ بھارتی میڈیا پی سی بی کرکٹ سے پابندی لگا سکتا ہے نا، اگر وہ مرتکب پائے گئے، ان کو جیل تو نہیں بھیج سکتا، ان کے خلاف ایف آئی آر تو درج نہیں ہو سکتی، ایف آئی اے وہ کرے گا، وہ اختیار ہیں۔ کھلاڑی اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہوئے تو جیل کی ہوا کھائیں گے، وزارت داخلہ نے بھی اسپاٹ فکسنگ کرنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا، ایف آئی اے انکوائری کے بعد مقدمے کے اندراج کا اعلان۔ پی ایس ایل فکسنگ کیس میں ایف آئی اے نے شرجیل خان، ناصر جمشید، خالد لطیف اور محمد عرفان کو نوٹس جاری کر دیے، 21 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت۔ ناصر جمشید سے تحقیقات کے لیے اینٹی کرپشن یونٹ سربراہ اعظم خان لندن جائیں گے۔ الطاف حسین سنگین جرائم کے مرتکب پائے گئے، پاکستان پر یقین نہ رکھنے والی جماعت کو سیاست کا حق نہیں دے سکتے، پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست کرتی ہیں، وزارت داخلہ کا ڈان لیگز کی تحقیقاتی رپورٹ پر اختلاف رائے کا بھی اعتراف۔ دہشت گردوں کے لیے فوجی عدالتیں پھر بنیں گی، 2 سال کی توسیع پر اتفاق، پارلیمانی کمیٹی شکایات کا جائزہ لے گی، ملزم کو 24 گھنٹوں میں فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ملٹری اتاشی کے علم میں لائے بغیر امریکیوں کو ایک ویزا جاری نہیں کیا، میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے، مضمون سازش نہیں، اندازہ نہیں تھا میری بات کا پاکستان میں اتنا سخت رد عمل آئے گا، حسین حقانی کا آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ ریفرنس کے محاذ پر تحریک انصاف کی کامیابی، عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف نااہلی ریفرنس مسترد، اگر کچھ غلط کیا ہوتا تو آج ہم نااہل قرار دیے جا چکے ہوتے، ایاز صادق اسپیکر کا عہدہ چھوڑ دیں، عمران خان کا مطالبہ۔ جس الیکشن کمیشن کو گالیاں دی آج اسی کے فیصلے پر شادیانے بجا رہے ہیں، عمران خان باعزت بری ہونے کا تاثر دے رہے ہیں، جو غلط ہے وہ جھوٹی عدالت لگانا بند کریں، لیگی رہنماؤں کا جواب۔ ملک بھر میں خانہ و مردم شماری کا دوسرا روز، کراچی میں فارم پینسل سے بھرنے پر تحقیقاتی کمیٹی قائم، سپریم کورٹ کا معذور افراد اور خواجہ سراؤں کو شمار کرنے کا حکم۔ خانہ شماری پر وزیر اعلیٰ سندھ کو شدید تحفظات، کہا مردم شماری کمشنر نے فلیٹ کو الگ گھرانہ شمار کرنے کا کہا تھا، کثیر المنزلہ عمارتوں پر 1 نمبر لگایا گیا، ایک فلیٹ کو ایک گھرانہ شمار نہ کرنا غلط ہے، اسحاق ڈار سے بات کروں گا۔ وزیر اعظم نے ٹھٹا کے بعد گوادر کے لیے بھی خزانے کا منہ کھول دیا، ہسپتال، ہیلتھ کارڈ، پانی، سڑکوں اور گلیوں کے لیے کروڑوں روپے کا اعلان، انتہا پسند بلوچستان سے بھاگ رہے ہیں، پاکستان ایشیا کا اور بلوچستان پاکستان کا ٹائگر بنے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے، ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم اور فوجی کمیشن کے وائس چیئرمین سے ملاقات۔ سپریم کورٹ میں سندھ میں فراہمی نکاسیات کی خراب صورتحال سے متعلق کیس کی سماعت، پیسوں کے چکر میں انسانی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری صاحب آپ ہمارے صبر کا اور امتحان نہ لیں، جسٹس امیر ہانی کا مکالمہ، نساسک کے فورنسک آڈٹ کا حکم۔ امریکی صدر کو ایک اور سبکی کا سامنا، امریکی ریاست ہوائی کے جج نے سفری پابندی کا نیا صدارتی حکم نامہ بھی معطل کر دیا، عدالت نے اختیارات سے تجاوز کیا،
डोनाल्ड ट्रंप का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के जानिब एक और कदम। मुल्क बरतानिया ने ब्रेक्जिट के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत को यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात की इजाजत मिल गई। मेरे कुत्ते को क्यों छेड़ा? फैसलाबाद में कुत्ते के मालिक ने 17 साल नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। लड़के ने कुत्ते से डरकर उसे भगाने की कोशिश की, जिस पर मालिक ने फायरिंग कर दी। पुलिस का मौका। जान दे दी मगर दुकान नहीं लूटने दी। फैसलाबाद में मेडिकल स्टोर का गार्ड डाकुओं से भिड़ गया। पेशावर में डाकू निजी बैंक से लाखों रुपए लूट कर फरार। और कराची चिड़ियाघर को 16 साल बाद रीछ का जोड़ा मिल गया। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की अहम तरीन खबर से। आपको बताएं, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के गद्दी नशीन पाकिस्तान में मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। आसिफ निजामी और उनका भतीजा नाजिम निजामी कल से गायब हैं। दोनों कराची वापसी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे थे। 4:30 बजे के करीब उनका फोन बंद हो गया। तब से अब तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा। मजीद जानते हैं आज न्यूज के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। शौकत, ये बताइएगा सबसे पहले कि उनकी अहले खाना से उनकी आखिरी बार बात कब हुई है? देखिए, इस खबर का इनफैक्ट मालूम हुआ जब आज भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली के साथ ये मामला उठाया। उसमें कहा गया था कि आसिफ निजामी जो कि बुजुर्ग हैं 80 साल के, और उनके भतीजे नाजिम अली निजामी वो पिछले हफ्ते कराची आए थे, क्योंकि कराची में वजीर निजामी उनके कोई अजीज हैं, उनसे मिलने के लिए। फिर वो कराची से 14 तारीख को लाहौर आए। उन्होंने दाता दरबार पे हाजिरी दी और गुज़श्ता रोज़ जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर शाहीन एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए कराची जाने लगे, तो उसके बाद उनका कुछ मालूम नहीं है वो किधर चले गए। मैंने खुद ट्राई की दिल्ली भी बात करने की, निज़ामी फैमिली के दीगर जो मेंबर हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि मामला बहुत हसास है तो हम इस पे बात नहीं कर सकते। अलबत्ता पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली ने जब उन्हें ये सारी मालूमात भारत ने दी और तावन मांगा, तो फिर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने प्रॉम्प्टली यहाँ पाकिस्तान में दफ्तर खारजा को इन्फॉर्म किया, जो मुतलका टेरिटोरियल डेस्क है, और फिर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला से तावन मांगा है। ये बहुत हसास मामला है पाकिस्तान के हवाले से भी कि पाकिस्तान के अंदर अगर दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन आए हैं और वो लापता हो जाएं, तो पाकिस्तान के लिए भी इसकी हसासियत है, और ख़ुद भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके लिए, फैमिली के लिए भी ये बहुत हसास मामला है कि अगर मुसलमान पाकिस्तान में आते हैं भारत में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, लेकिन उससे बढ़ के अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है तो फिर इस हसास नौइयत होने की वजह से इस मामले के बारे में बहुत ज़्यादा कोई हमारे साथ बात नहीं कर रहा। लेकिन कल शाम से ये दोनों अफराद, आसिफ अली निजामी साहब जो बुजुर्ग हैं 80 साल के करीब जिनकी उम्र है, और उनके भतीजे नाजिम अली निजामी लाहौर एयरपोर्ट के करीब से कहीं से गायब हैं। ठीक है शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया। आपसे इस बारे में मजीद भी गुफ्तगू कर पराचा में अपडेट कर रहे थे। आसिफ निजामी 6 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे, अपनी हमशीरा के घर ठहरे और अब कल से वो गायब है। इसी हवाले से आपको मजीद अपडेट करें कि भारतीय मीडिया ने दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के गद्दी नशीन की गुमशुदगी के बारे में बताया है कि आसिफ निजामी 6 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे, कराची में अपनी बहन के घर रिहाइश अख्तियार की।
वो लाहौर गए, पाक पतन में बाबा फरीद के मजार पर हाजिरी दी। और आपको ये भी बताएं कि उन्हें 15 मार्च को आखिरी बार लाहौर एयरपोर्ट पर देखा गया। शाम 4:25 पर आसिफ निजामी साहब का फोन बंद हुआ, वो तब से ही लापता हैं। उधर भारत में आसिफ निजामी के अहल खाना ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से राब्ता कर लिया है। 6 मार्च को PIA की परवाज से आसिफ निजामी पाकिस्तान पहुंचे थे और उसके बाद कराची में वो अपनी बहन के घर ठहरे थे। इस बारे में तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अब चलते हैं स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से जुड़ी एक अहम खबर की जाने। PSL में स्पॉट फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला अब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला FIA की इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज करने और फिक्सिंग में मुलविस खिलाड़ियों को जेल भेजने का ऐलान कर दिया। उधर FIA ने 4 खिलाड़ियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। खिलाड़ियों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने मुलव्विस खिलाड़ियों को निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना था कि हम खिलाड़ियों को इज्जत देते हैं और वो नाम खराब कर रहे हैं। हमने ठेका ले लिया है कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेटर्स की इतनी इज्जत दें, और इनमें से चंद, सारे नहीं, इनमें से चंद बार बार हमारी इज्जत को खाक में मिलाएं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी निसार ने कहा कि लगता है PCB स्पॉट फिक्सिंग की इंक्वायरी खुद करना चाहता है। खिलाड़ी मुलविस हुए तो FIR कटेगी और वो जेल की हवा भी खाएंगे। PCB तो किसी को क्रिकेट से पाबंदी लगा सकता है ना। अगर वो मुर्तकिब पाए गए, उनको जेल तो नहीं भेज सकता, उनके खिलाफ FIR तो दर्ज नहीं हो सकती। FIA वो करेगा, वो इख्तियार हैं। अगर लंदन में जुर्म का इर्तिकाब करने वाले जेल जा सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं जा सकते। उधर FIA ने शर्जील खान, नासिर जमशेद, खालिद लतीफ और मोहम्मद इरफान को नोटिस जारी कर दिए हैं। FIA का कहना है कि खिलाड़ियों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। खिलाड़ियों को 20 और 21 मार्च को पेश होने की हिदायत की गई है। ये तहकीकात PCB की दरख्वास्त पर हो रही हैं। PSL फिक्सिंग स्कैंडल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खालिद लतीफ, शर्जील खान और मोहम्मद इरफान मुअत्तल हैं। कराची किंग्स के शाहजेब हसन को भी मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। क्रिकेटर नासिर जमशेद से तहकीकात के लिए एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर्ड आजम खान लंदन जाएंगे। शाहजेब हसन 2 मरतबा एंटी करप्शन को बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, जिसका बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। उन्हें भी चार्जशीट दिए जाने का इम्कान है। PSL फिक्सिंग स्कैंडल में लंदन से बुकी यूसुफ और क्रिकेटर नासिर जमशेद की गिरफ्तारी भी अमल में आई, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब PCB एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर्ड आजम खान नासिर जमशेद से तहकीकात के लिए लंदन जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद को रुकवाने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के मामले में पाकिस्तानी हुकाम को तफ्तीश के लिए बरतानिया भिजवाया जाएगा। डॉन लीस की तहकीकाती रिपोर्ट मुताल्लिका इदारों के इख्तिलाफी नुक्ता नज़र का शिकार है। ये रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला ने कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन रसालत करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। उनके खिलाफ अमरीका और दीगर ममालिक समेत सोशल मीडिया के वेबसाइट्स के मालिकान का ताउन दरकार है। पाकिस्तान आखिरी हद तक जाकर मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। मुस्लिम ममालिक को भी मुतफिका इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि आज़ादी इजहार की आड़ में इस्लाम के खिलाफ घटिया साजिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुस्ताखाना मवाद को पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 11 अफराद से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये आज़ादी इजहार है या इस्लाम के खिलाफ और हमारी मुकद्दस तरीन हस्तियों के खिलाफ घटिया तरीन साजिशें। हम इस घिनौने जुर्म का बार बार इर्तिकाब करने वालों को उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अल्ताफ हुसैन के मामले पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान पर यकीन न रखने वाली जमात को मुल्क में सियासत का हक नहीं दे सकते। मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने के जुर्म की तहकीकात के हवाले से बरतानिया को दरखास्तें दे रखी हैं, ताकि पाकिस्तान से तहकीकाती हुकाम बरतानिया जाकर शवाहिद हासिल कर सकें। जो केस यहाँ चल रहा है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, एक्सेस के लिए, हमारे जो यहाँ तफ्तीश वाले हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, उनको लंदन भेज रहे हैं कि हमें फलां लोगों की इंटरोगेट करने की अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। कौमी सलामती से मुतल्लिक डॉन लीग सी तहकीकात पर चौधरी निसार ने कहा कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट अभी तक मुतफिका नुकात पर तैयार नहीं हो सकी। कुछ इख्तलाफी अमूर बाकी हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। नासिक आजमी, आज न्यूज, इस्लामाबाद।
حسین حقانی کا دعویٰ ہے کہ امریکیوں کو ایک ویزا بھی ملٹری اتاشی کو علم میں لائے بغیر جاری نہیں کیا۔ بقول حقانی ان کے پاس تمام ویزوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تازہ مضمون سازش کے طور پر نہیں لکھا، اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بات پر پاکستان میں اتنا سخت رد عمل آئے گا۔ میں نے کبھی بلائنڈ سائڈ نہیں کیا اور یہ پورا پروسیس فالو کیا کہ ایک ایک ویزا جو ہے وہ ملٹری ونگ کے تھرو جائے گا، حتیٰ کہ سیولینز کے ویزے بھی، اور اس کا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ وہ میں نے ریکارڈ اس لیے رکھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب میمو گیٹ کا شو شروع ہوا تو تبھی یہ ویزوں کا شو شروع ہوا، تو مجھے پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک ویزا واشنگٹن سے بغیر ملٹری اٹیشی کے کاؤنٹر سگنیچر کے جاری نہیں ہونے دیا جب تک میں سفیر رہا۔ ٹھیک ہے، خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی بھی آخر مان گئی۔ فوجی عدالتوں کو مزید 2 سال توسیع ملے گی۔ پارلیمانی جماعتوں میں مشروط حتمی اتفاق رائے ہو گیا۔ قانونی ترمیم کا نظر ثانی مسودہ کل قومی اسمبلی اور آئندہ ہفتے سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ پیپلز پارٹی اپنے 9 مطالبات میں سے 4 نکات ہی منوا سکی۔ مشترکہ نیوز بریفنگ میں ایاز صادق نے بتایا کہ JUI اور جماعت اسلامی کے تحفظات بھی دور ہو چکے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے اقدامات کی نگرانی کے لیے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ JUIF اور جماعت اسلامی نے بھی کچھ امینڈمنٹس دی ہیں، وہ بھی آئیں گی، اور پیر والے دن اس بل کو پارلیمنٹری لیڈرز اس پہ جو بات کرنا چاہیں گے کر کے، تو اس کو نیشنل اسمبلی سے کوشش یہی کی جائے گی کہ کنسنسس سے اس کو پاس کیا جائے۔ اعتزاز احسن نے 9 میں سے 4 نکات تسلیم ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، فوجی عدالت پر اتفاق ہو گیا ہے۔ غالب امکان ہے کہ سیشنز ججز اور ایڈیشنل سیشنز ججز ملٹری کورٹس کے لیے مستعار نہیں دیں گے، تو اس کا باقی بات جو کی ہے ڈار صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے، وہ اس سے میں اور ہم اتفاق کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نیا قانون کسی سیاسی یا خاص مذہبی طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے قائدین عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف حکومتی جماعت کے نااہلی ریفرنسز کو ناقابل سماعت ہونے کی بنیاد پر مسترد کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے اس کے نتیجے میں اسپیکر ایاز صادق سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومتی نمائندوں نے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف حکومتی ارکان کے نااہلی ریفرنس گزشتہ سال ستمبر میں الیکشن کمیشن کو بھیجے تھے۔ اس میں تحریک انصاف کے دونوں قائدین پر انتخابی گوشواروں میں اثاثے چھپانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی کئی سماعتیں کی تھیں۔ آخر میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے اسپیکر ریفرنس کو خارج کرنے کا حکم سنایا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں نے خوشیاں منائیں۔ نعیم الحق نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔ یہ حقائق کی فتح ہے، یہ مفروضوں کی شکست ہے۔ اس کے بعد میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اپنے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دے دیں۔ حکومتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو مقدمے کے قابل سماعت نہ ہونے کی تکنیکی بنیاد کی آڑ ملی۔ عمران خان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ کمیشن فیصلے کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ مینٹینیبلٹی کے پیچھے تم اور جہانگیر ترین کتنی دیر چھپو گے؟ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا حق رکھتے ہیں، ہم سپریم کورٹ جانے کا حق رکھتے ہیں۔ ریفرنس کا فیصلہ میرٹس پہ نہیں، صرف 1 سال بعد اتنا فیصلہ ہوا کہ یہ ایڈمیزیبل نہیں ہے۔ حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت کے کالے دھن کا بھانڈا پھوڑے بغیر چین نہیں لیں گے۔ PTI نے بھی اعلان کیا حکمران شریف برادران کی تشہیر میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا۔ سربراہ تحریک انصاف عمران خان نے اسپیکر ایاز صادق کو نشانہ بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ ایاز صادق اسپیکر کا عہدہ رکھنے کا حق کھو چکے ہیں۔ حکومت نے یہ جواب دیا ہے کہ استثناء کے تانے دینے والے عمران خان خود اپنی خلاف نااہلی ریفرنس میں ایسے ہی استثناء کی آڑ لی۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے آصف نوید کی رپورٹ۔
अपने खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस मुस्तरद होने पर इमरान खान ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि अपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए रेफरेंस भेजे गए। स्पीकर अयाज सादिक ने शरीफ खानदान से मिलकर इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अयाज सादिक के पास स्पीकर रहने का कोई जवाब नहीं रह गया। क्या अयाज सादिक आपका कोई जवाब रह गया कौमी असेंबली के स्पीकर रहने पे? क्या आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए? कप्तान ने गुस्ताखाना मवाद को रोकने की हमायत की, ताहम ये भी वाज़िया किया कि इसकी आड़ में बाकी सोशल मीडिया को रोकने की कोई कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। इमरान खान के इल्जामात पर जवाबी न्यूज ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने साथी रहनुमाओं के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के सरबराह को अपोजिशन में रहकर जमहूरियत के साथ चलना कबूल ही नहीं। इमरान खान सिर्फ वो बात मानते हैं जो इनके हक में हो। ECP के अंदर जो रेफरेंसेस आए स्पीकर साहब की तरफ से, इमरान खान साहब ने उनकी मेंटेनेबिलिटी, उनकी एडमिसिबिलिटी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मेरे से सवाल पूछने का जवाब नहीं। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि इमरान खान की जानिब से अयाज सादिक को स्पीकर न मानने का ऐलान भी नया नहीं। PTI वाले तो पहले ही इजलास में स्पीकर को अयाज सादिक ही पुकारते हैं। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। गवादर में जलसा आम से खिताब करते हुए जहां वजीर आजम नवाज शरीफ ने सड़कों की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान किया, वहीं उन्होंने इमरान खान की तनकीद का भी भरपूर जवाब दिया। कहा कि सड़कों की तामीर से ही तरक्की आती है, आसमान के रास्ते से अस्पताल नहीं पहुंचते। इमरान खान की वजीर आजम पर तनकीद और वजीर आजम का जवाब आपको दिखाते हैं। बजाय हम यूनिवर्सिटीज, बजाय हम हॉस्पिटल्स, स्कूल इनके इफ्तिताह करें, हम जब देखते हैं नवाज शरीफ को कोई सड़क के इफ्तिताह कर रहा होता है। सड़कों से पहले तरक्की नहीं आती, सड़कें बनने के बाद तरक्की आती है। सड़कें बनने के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनती हैं। सड़कें बनने के बाद अस्पताल बनते हैं। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि सड़क जब बनती है तो भाई सब कुछ अल्लाह के फल से आता है। जब सड़क नहीं होती तो आसमान के रास्ते से अस्पताल नहीं पहुंचते, तो उड़कर स्कूल कॉलेज नहीं बनते, उड़कर यहां पर यूनिवर्सिटियां नहीं बनती, उड़कर जो है वो इंडस्ट्री नहीं आती। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गवादर की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी और चीनी शराकतदारी से अस्पताल बनाने की भी नवीद सुना थी। कहते हैं गवादर की जमीन सोना है, पाकिस्तान एशिया का और गवादर पाकिस्तान का टाइगर बनेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने गवादर में नून लीग के जलसे से खिताब किया तो उनका जोश और अंदाज तखातुब दीदनी था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, आज मैं इस वक्त बड़े सरूर में हूं, अपने गवादर के अवाम से मैं मुखातिब। वजीर आजम ने कहा कि गवादर समेत बलूचिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। CPAC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। इंतहा पसंद बलूचिस्तान से भाग रहे हैं, हम दहशतगर्दों को भगाकर ही दम लेंगे। पाकिस्तान एशिया का और बलूचिस्तान पाकिस्तान का टाइगर बनेगा। इस तरह से मंसूबे चल रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा और बलूचिस्तान पाकिस्तान का टाइगर बनेगा। वजीर आजम ने ठट्टा की तरह गवादर के लिए भी तिजोरी के मुंह खोल दिए। सेवरेज के निजाम और सड़कों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए जबकि यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया। जो अगला बजट जो आने वाला है, जो कि इंशाल्लाह ताला जो 2-3-4 महीनों में इंशाल्लाह आ जाएगा, उसमें आप कम से कम यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपया जो है वो ग्रांट रखें। 100 करोड़ रुपया। वजीर आजम ने अपनी नवाजिशात की बारिश जारी रखी और साथ ही चीन के ताउन से 300 बिस्तरों के अस्पताल, हेल्थ कार्ड और पीने के साफ पानी के मंसूबे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गवादर में 1100 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, इसकी जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती हो रही है। तकरीबन एक माह कबल सिक्योरिटी मसाइल की वजह से बंद की गई पाक अफगान सरहद को खोलने की हतमी तारीख तय नहीं हुई। आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया का कहना था कि लंदन में होने वाले पाक अफगान राब्तों में दीगर मसाइल के साथ इस बंदिश के हल के लिए भी तजावीज़ पर बातचीत हुई है। Seen as an opportunity for them to meet and discuss situation in Afghanistan, bilateral issues particularly related to border management and cross-border terrorism that caused loss of numerous precious lives in Pakistan.
पाक अफगान सरहद पर मुजाहरा किया गया और ज्यादातर एहतजाज ताजिर बरादरी की जानिब से किया जा रहा है जो रोज बॉर्डर को फौरन खोलने का मुतालबा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ताजिर तबका ही इस बंदिश से तंग है। हमारी नुमाइंदा फरजाना अली अभी कुछ ही रोज पहले बॉर्डर पर गई थी, वहाँ उन्होंने जो देखा आपको दिखाते हैं। अफगान तोरखम बॉर्डर पर बैठी नूर और उसकी बहन मां से मिलने के लिए बेताब हैं। ननिहाल आई दोनों बहनें पाकिस्तान में फंस गईं। मुझे बहुत चिंता है अम्मी की कि वो मुझसे बहुत दूर है, बहुत उदास भी हूँ। अपने मामू से चाचा से सबसे मिलने आई थी। लंडीकोतल के रहमान गुल का रोजगार और जलालाबाद के माहिर की बीवी का इलाज दोनों ही सरहद के खुलने पर मुनहसिर हैं। बॉर्डर बंद हो गया, रोजगार किधर है? बहुत इलाज किया लेकिन कोई नतीजा न निकला, तो यहाँ इलाज के लिए आ गए। रिश्ते, इलाज और रोजगार, एक लकीर हर एक को मुतासिर करने लगी। फरजाना अली, आज न्यूज, तोरखम बॉर्डर, खैबर एजेंसी। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कुत्ते को छेड़ने की सजा मौत। और अमरीकी सदर को लगातार झटके। वेलकम बैक। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, जहां कुत्ते को तंग करने पर 14 साल लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। कुत्ते के मालिक ने तैश में आकर लड़के पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कुत्ते को भगाने की सजा मौत। मिल्लत टाउन के इलाके कच्ची आबादी में 14 साल लड़के को गोली मार दी गई। लड़के ने डर कर कातिल के कुत्ते को भगाने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक लड़के को जख्मी हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक लड़का कच्ची आबादी में भीख मांग रहा था कि उसने कुत्ते से डरकर उसे भगाने की कोशिश की, जिस पर कुत्ते के मालिक ने फायरिंग कर दी। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वाकये के बाद मकतूल के भाई ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। मकतूल के भाई ने मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिम की तलाश जारी है। फैसलाबाद से एक और खबर शामिल करते हैं, जहां गुज़िश्ता रात मेडिकल स्टोर में होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली है। सिक्योरिटी गार्ड ने डकैती की कोशिश को अपनी जान देकर नाकाम बना दी। जड़ावाला रोड पर मेडिकल स्टोर में गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की कोशिश की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए, जिन्होंने नादिर नामी 50 साल सिक्योरिटी गार्ड के पांव पर गोली मारकर असला छीनने की कोशिश की। बाहिम्मत सिक्योरिटी गार्ड ने पांव जख्मी होने के बावजूद डाकुओं को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग कर दी और लूट मार किए बगैर ही फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड मौका पर ही जाँ बहक हो गया। सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के बावजूद पुलिस ताहाल डाकुओं का सुराग नहीं लगा सकी। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर फिर पाबंदी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप खासे गुस्से में हैं, ताहम उन्होंने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। This executive order is another major step toward making the federal government efficient, effective, and accountable to the people. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मार्च को 6 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर पाबंदी के नए हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिस पर 16 मार्च से अमल किया जाना था, लेकिन अमल दरामद से सिर्फ चंद घंटे कबल रियासत हवाई के जज ने एग्जेक्टिव ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। रियासत मैरीलैंड के वफाकी जज ने भी एग्जेक्टिव ऑर्डर की मुअत्तली का हुक्मनामा सुनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुअत्तली के फैसले पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। उन्होंने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी ऐलान किया। This is the opinion of many. अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। अदालत के फैसले से कमजोर अमेरिका का तसव्वुर जाएगा। The law and the Constitution give the president the power to suspend immigration. इससे कबल अमरीकी सदर ने 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों और तारकीन वतन के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार देकर ख़त्म कर दिया था।
एक अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पेट्रन्स ट्रॉफी ग्रेड 2 में बोर्ड कवानीन की धज्जियां उड़ने लगी। बड़े खिलाड़ियों की मौजें, जबकि छोटे खिलाड़ियों को सिर्फ धक्के ही मिल रहे हैं। कप्तान उमर अकमल मैच के बाद कोच के साथ कार में होटल गए, जबकि दीगर खिलाड़ी रिक्शों में रवाना हुए। क्रिकेट बोर्ड ने रवां साल ही ग्रेड 2 में खिलाड़ियों को अच्छी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की थी। आपको बताएं कि पेट्रन्स ट्रॉफी ग्रेड 2 में बोर्ड कवानीन की धज्जियां उड़ने लगी। बड़े खिलाड़ियों के मौजें, छोटे खिलाड़ियों को सिर्फ धक्के मिल रहे हैं। मजीद अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।